خالص سامنے دعوت آئیے کھڑے کھڑے انجیل مقدس کی تلاوت کریں گے۔ لوکا کی انجیل 6 باب 27 سے تک پڑھیں گے۔ لوکا کی انجیل 6 باب 27 سے لے کے 29 تک پڑھیں گے۔ لیکن میں تم سننے والوں سے کہتا ہوں کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو، جو تم سے عداوت رکھے ان کا بھلا کرو، جو تم پر لعنت کرے ان کے لیے برکت چاہو، جو تمہاری تحقیر کرے ان کے لیے دعا کرو، جو تیرے ایک گال پر تماچا مارے دوسرا بھی اس کی طرف پھیر دے، اور جو تیرا چوگا لے اس کو کرتا لینے سے بھی منع نہ کر۔ جو کہ تجھ سے مانگے اسے دے، اور جو تیرا مال لے۔ آمین۔ خدا کا پاک کلام پڑھا اور سنا جانا تو کے لیے برکت کا باعث ہو۔ آمین۔ تشریف رکھیں۔ ہاللیلویا۔ خدا یسوع مسیح کے پرفضل نام میں آپ سب کو سلام۔ آئے خدا کے زندہ کلام میں سے آج اپنی اصلاح کے لیے ذرا تھوڑی دیر کے لیے دیکھیں گے۔ غم بہت بڑا ہے۔ جب وقت سے ہم ہو کے آئے ہیں تو وہ لوگ آنکھوں کے سامنے سے ہٹ نہیں رہے۔ کس طریقے سے نہ تو ادھر ابھی لائٹ کا کوئی نہیں ہے، وہ باہر ویسے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کے گھروں میں ابھی تک یہ حالت ہے، لگتا ہے کہ ابھی کسی چیز کو چھیڑا جائے گا تو آگ لگ جائے گی، گرم۔ میں اسی سے پہلے میں تھوڑا سا بیان کرنا چاہتا ہوں۔ یہ پورا ایک پلان کیا گیا، کیونکہ یہاں ہم جو دیکھ رہے ہیں فرق ہے۔ یہ ایک پلاننگ کے تحت یہ سارا کچھ کیا گیا ہے۔ وہاں پہ جو علاقے جن میں یہ تقریب کاری کی گئی، لوٹ مار کی گئی، تقریباً 20-22 کلومیٹر کا ایریا یہ پورا ایک جگہ نہیں ہے۔ جیسے جوسف کلونی ایک ہی جگہ تھی، ہو گیا، لیکن یہ بہت سارے علاقے ہیں، دور دور ہیں، آپ اس کو وزٹ نہیں کر سکتے، اتنے زیادہ علاقے ہیں۔ لیکن سب سے زیادہ جو نقصان ہوا ہے وہ کرسچن کلونی، کرسچن ٹاؤن جس کو کہتے ہیں، جڑا والے کے اندر ہے، شہر کے اندر۔ اور یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ ہوا کیا ہے۔ جس مولوی صاحب نے اعلان کیا ہے اور جس گھرانے کے ساتھ یہ زیادتی کی جا رہی ہے، 5 لاکھ روپیہ انہوں نے دیا تھا مولوی صاحب کو باہر جانے کے لیے۔ اس نے کہا کہ میں آپ کو باہر بھیج دوں گا۔ 5 لاکھ روپے کا یہ سارا معاملہ ہے۔ جب پیسے انہوں نے مانگے، انہوں نے کہا جی ہمیں پیسے واپس لوٹا دیں، ہمارے بیٹے کی طبیعت خراب ہے تو ہم نے باہر نہیں جانا، ہمیں پیسے چاہیے۔ تو اس کے بعد یہ ساری پلاننگ کی گئی، صرف 5 لاکھ ہڑپ کرنے کے لیے۔ اور افسوس کی بات، جتنے گھروں کو آگ لگائی گئی ہے پہلے ان کے گھروں سے لوٹا گیا ہے، چوری کی گئی ہے، بہت بڑی ڈکیتی ہوئی ہے وہاں پہ اندر جا کے ان کی سیفیں توڑی گئی، ان کے ڈورز نکالے گئے، پھر ان کے بعد LCD ان کی نکالی گئی،
उनके मैक्रो ओवन निकाले गए, जो अच्छी अच्छी चीजें थी वो सारी की सारी निकाल ली गई और उसके बाद आग लगा दी गई। शो किया गया कि यहाँ पे आग लग गई है, लेकिन वहां पे आग लूट मार के बाद लगाई गई है। ये टोला जिसने ये काम किया है, उनकी तरबियत कैसी है कि पूरे उस इलाके में 29 चर्च हैं, 29 चर्च हैं, जिनमें से 22 चर्च जला दिए गए। सरकारी जो मेरे पास उसकी कल मेरे पास उसकी पूरी एक लिस्ट आई है, जो सरकारी तौर पे, क्योंकि इस वक्त वजीर आजम, वजीर आला, जो पुलिस के अहदेदारान हैं, वो वहां पे बार बार आ जा रहे हैं। लेकिन हमारे लिए खुशी की बात यह है कि चर्च बहाल होना, कल एक ही चर्च जो है आज वो बहाल हो गया, आज उसकी ओपनिंग भी कर दी गई। जिस दिन मैं गया था परसों, उस वक्त दिन रात उसका एक ही दिन में सारा काम हुआ, दिन रात काम करके उन्होंने उस चर्च को बनाया। और आज सुबह उसकी खबर जो आप देख सकते हैं टीवी पे चल रही होगी कि वजीर आजम भी उस चर्च में बैठे थे, वजीर आला भी वहां पे बैठे थे और उस चर्च को दोबारा से ओपन कर दिया गया है। घरों की सफाइयां होना शुरू होगी है, बहुत जल्दी ये सारा कुछ हो जाएगा, बहाल हो जाएंगे, घर भी बन जाएंगे, 20-20 लाख रुपया भी मिल रहा है उनको, लोग भी बड़ी हेल्प कर रहे हैं, जो भी वहां पे जा रहा है बहुत ज्यादा हेल्प की जा रही है। लेकिन जो अफसोस की बात है, परसों जब हम वहां पे बैठे थे, उस दिन पूरे इलाके के रास्ते बंद थे, गाड़ी हमने एक जगह पे खड़ी की और सारा इलाका हमने पैदल विजिट किया। इतनी थकावट हो चुकी थी कि जिंदगी में मैं कभी इतना नहीं थका। एक तो परेशानी थी, एक गर्मी बहुत थी। आपने आज मैंने एक वीडियो सेंड हमने की है, एक हम तैयार कर रहे हैं, बहुत जल्द वो वीडियो भी आप तक पहुंच जाएगी। उसमें हमने एक इलाका दिखाया है कि एक इलाके में हमने जो विजिट किए, पहले सबसे पहले हम उस कब्रिस्तान में गए जहां पे कब्रों को बेहुरमत किया गया, उसकी दीवार तोड़ दी गई, उसकी कुरासें तोड़ी गई। सबसे पहले हम उस कब्रिस्तान में गए, उनका बस नहीं चला, अगर उनका बस चलता तो कब्रें खोद के मुर्दे बाहर निकाल देते। यह है तरबियत का काम, यह तरबियत है। मैं कोई वीडियो देख रहा था, बात हो रही थी कि पास्टर अपने नौजवानों की तरबियत नहीं करते, अपने नौजवानों की तरबियत करें ताकि वो ऐसे काम ना करें। हमने कुछ नहीं किया, जो कुछ किया गया है ये टोले ने किया है, उनका कोई कसूर नहीं। आप पहले तहकीकात कर लें, वहां जाके विजिट करें, आपको पता चलेगा कि वहां बेसिक हुआ क्या है। हम यहां पे बैठ के कैस करते हैं, वहां पे कोई ऐसा वाकया नहीं हुआ, ये एक प्लान के मुताबिक ये सारे काम किए गए। जब हम वहां पे एक शेल्टर होम बना दिया गया है जहां पे लोगों को ठहराया गया है, वो स्कूल है, वहां किसी को जाने की इजाजत नहीं है क्योंकि वहां पुलिस और एजेंसियां बहुत बैठी हुई हैं, एहसास दारा समझ ले। हम किसी के वसीला से वहां पर पहुंचे, खुदा हमें वहां पे ले गया। जब हम वहां पे पहुंचे थोड़ी देर हमने सांस ली और उसके बाद जब हमने विजिट शुरू किया, क्लासों के अंदर लोग थे। तो जब हम पहली क्लास में ही गए, जिस फैमिली को हम मिले, वहां एक बेटी थी और उसकी माँ थी, छोटे बच्चे थे। यकीन जाने बच्चों के चेहरों पर रौनक नहीं, खामोश ऐसे बैठे थे जब जैसे अभी ये रोएंगे अभी, ऐसे वो बैठे थे उदास चेहरों के साथ, और हमारे अपने आंसू निकल रहे थे उनको देख के। तो उनकी एक बेटी बैठी थी, मैं कहा बेटा इधर आओ मेरे पास, क्या हुआ है? कुछ नहीं अंकल। परेशान एक बेटी को हम मिले जिसका 12 दिन का बच्चा है, अभी खुदा ने उसको पहली बार ब्लेसिंग दी, पहली औलाद है उसकी, छोटा सा उसकी गोद में बच्चा था और वो मुसलसल रो रही थी। हमने पूछा क्या हुआ बेटा?
कहती अंकल जब मैं अपने घर में थी तो इसके सर में डंडा मारने लगे थे। जुल्म की इंतहा है ये। एक 12 दिन का बच्चा उसको भी आप नहीं छोड़ रहे। दर्स क्या है आपका? आप क्या तालीम देते हैं और कहते हमें हैं कि हम लोगों को तालीम ठीक नहीं दे रहे। तालीम आपकी गलत है, हमारी नहीं है। उस बच्चे को जो 12 दिन अभी हुए हैं, वो पैदा हुआ है, आप उसका भी नहीं छोड़ रहे, उसको भी मारने की कोशिश कर रहे हैं। और वो उसकी मां कहती भाई साहब मैंने वापस अपने घर में नहीं जाना, मैं कहीं और चली जाऊंगी, मैं अपने घर में वापस नहीं जाऊंगी। तो जब मैं बात कर रहा था उससे, एक और छोटा सा बच्चा वहां पे घूम रहा था, बच्ची थी, मैंने उसको पकड़ा, मैंने उसको प्यार किया। तो एक बहन वहां पे बैठी थी, बेटी, वो उसकी माँ थी। तो मैंने उससे पूछा, मैं कि ये किसकी बच्ची है? तो कहती थी मेरी है। तो मैंने कहा कि आप कितने उदास हैं, कितने परेशान हैं? तो कहती अंकल क्या करें, जो कुछ हमारे सामने हुआ है वो हमें पता है, किस तरीके से उन्होंने आके ज्यादतियां की हैं, सिर्फ हमारी इज्जत बच गई, हम जान से बच गए। अगर उनके बस में होता तो शायद वो जान से भी लोगों को मार देते। वो बहन कह रही थी कि भाई साहब हमें पता सारा कुछ हमें मिल जाना है, वाफर मकदार में मिल जाना है, ज्यादा मिल जाना है, लेकिन जो हमारे अंदर खौफ बैठ गया है वो कैसे निकलेगा? हम खौफ से कैसे बाहर निकलेंगे? फिर हम उन बच्चों को मिलने गए, जो बच्चे, मैंने एक तस्वीरें लगाई थी, खेतों में सोए थे, नौजवान बेटियां हैं और खूबसूरत बेटियां थी वो। हमने उनको ढूंढा, उनको मिले जाके, उनसे मैंने बात की और उनका एक बच्चा अभी तक उस दिन भी चरपाई पे पड़ा था। वो कहते भाई साहब जब ये उठता है तो एकदम से चीखे मारना शुरू कर देता है, रोना शुरू कर देता है, वो आ गए मार देंगे, वो आ रहे हैं, वो हो गया, ये हो गया। बस उसकी एक ही पुकार है और बार बार वो बेहोश हो जाता है। कभी हम इसको उठाते ही नहीं है कि ये सोया रहे। बहुत सारे घरों में हम गए, हालात वहां के इतने खराब हैं, हम उनकी मदद कर रहे हैं, बहुत सारे इलाकों से खाना जा रहा है, हर चीज वाफर मकदार में वहां पे, लेकिन जो उनके अंदर खौफ है वो हम नहीं निकाल सकते, वो नहीं हम निकाल सकते। कैसे निकाले हम? अगर आप वहां पे जाएं, विजिट करें, ये सिर्फ आप वीडियो देख रहे हैं, लेकिन जब आप वहां पे जाएंगे तो फिर आपको पता चलेगा। आप जब वहां से गुजरते हैं, आपको लोग खींच खींच के थैले खींच खींच के अपने घरों में लेके जाती। भाई साहब ये देखे मेरे घर का हाल, जो चीजें बच गई उनको तोड़ दिया गया है, ताकि पता चले कि जी सिर्फ तोड़ा गया है, जलाया गया है, और कोई केमिकल, खास किस्म का केमिकल इस्तेमाल हुआ है। उनके गार्डर जो है वो टेढ़े हो गए, बर्तन जहां जहां पड़े हैं बर्तनों के अंदर सराख हो गए। आग से ये नहीं होता, आग से या तो सारा कुछ पिघल जाए, लेकिन उनके अंदर सराख है। किसी का ढक्कन है तो आधा ढक्कन पड़ा है, पतीली तो आधी पतीली पड़ी है। जो इस तरीके से वहां पे ये सारा कुछ हुआ है, और ये एक प्लान के मुताबिक हुआ है, ऐसे नहीं ये सारा कुछ हुआ। हमने उस दिन सारा इलाका, रात हम 11:30 बजे वापस लाहौर में आए। दाने चाह तो बहुत जल्द मैं वापस जाऊंगा, क्योंकि मेरा दिल जो है वो नहीं मान रहा। मैं चाहता हूं कि मैं उनमें जाके बैठूं, उनकी बातचीत सुनूं, उनको तसल्ली दे। हमने वहां पे भी खड़े होके यही गीत गाया, और जब हम वो उस घर में गा रहे थे जहां जो बेटियां खेतों में रही, और वहां पे बहुत सारे बच्चे जमा हुए, बहुत सारी बहनें जमा हुई, बहुत सारी बेटियां जमा हुई, और बड़ी दलेरी के साथ वो यही गीत गा रही थी, हाँ मैं मसीही हूं, चाहे मार दो, जो मर्जी कर दो, लेकिन आप हमें अपने मजहब से चेंज नहीं कर सकते। सो ये मेरा बताने का मकसद है कि वहां वाकयात और हालात फर्क हैं। यहाँ हम इत्तेजाज करने के लिए निकलते हैं, तो अगर ऐलान करते हैं तो हमारे साथ कितने को लोग निकलते हैं। मैं अपनी कलीसिया का शुक्रगुजार हूं। संडे को जब एहतजाज पे हम गए तो सबसे ज्यादा तादाद जो थी हमारे चर्च की थी।
हमारे चर्च के ज्यादा लोग थे। कल किसी बेटी की बर्थडे थी, मुझे किसी ने फोन किया कि भाई साहब आपने उसको विश नहीं किया। मैं कहा मेरी अपनी भतीजी की बर्थडे थी, मैं किसी को विश नहीं करना, ना मेरा दिल कर रहा है किसी को विश करने को। इस वक्त हमें विश करने की जरूरत है, हमें उधर देखने की जरूरत है। जिनको सारा कुछ भूला पड़ा है, कुछ नहीं याद उनको, ना बर्थडे ना कोई शादी। वहां ऐसी ऐसी बेटियां हैं, एक बेटी कह रही थी मेरी मेहंदी थी, उसी दिन मेरी मेहंदी होने वाली थी, सारा कुछ लूट के ले गए, घर से सारा सामान ले गए, जहेज का सामान ले गए। ये जुल्म की इंतहा है। आप अगर जाके वहां पे किसी को मिले तो आप खून के आंसू रोएंगे। आइए जरा थोड़ा सा खुदा के कलाम को देखते हैं कि हम में और उस बोले में क्या फर्क है। अभी हमने लूका की इंजील को पढ़ा है, दोबारा से पढ़ते हैं। लिखा है, लेकिन मैं तुम सुनने वालों से कहता हूं कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो, जो तुमसे अदावत रखें उनका भला करो। आज हम इस तलीम में बंध गए हैं, हमें इस तलीम में बांधा गया है और हम यही सिखाते हैं कि हमने एक दूसरे से मोहब्बत करनी है, अपने दुश्मनों से भी मोहब्बत करनी है। जिन लोगों ने ये सारा कुछ किया है, फिर भी हम उनके लिए दुआ ही करेंगे कि खुदावंद उनके ज़हनों को चेंज करे। आगे पढ़े जरा अगली आयत को। जो तुम पर लानत करे उनके लिए लानत करे उन पर क्या करो, उनके लिए बरकत मांगो। हम उनके लिए लानत नहीं मांग रहे, हम नहीं मांग रहे। कल मेरे पास एक बेटी बैठी थी, हदिया देने आई, कहती भाई साहब हम लेट हो गए, आप वहां पे गए थे तो हम भी चाहते थे कि आप आपको दें, ये आप हमारा हदिया रख लें, जब दोबारा जाएंगे तो आप जरूर वहां पे हमारे लिए हमारी तरफ से कुछ लेके जाएं। तो मुझे कह रही भाई साहब जब उन्होंने क्रॉस को तोड़ा, जब उन्होंने बाइबलों को जलाया, तो बाइबल मुकद्दस में तो खुदा बड़ा व्योर खुदा है, खुदा ने क्यों नहीं उनके हाथ तोड़े। तो मैं उसको कह रहा था बेटा ये फजल का दौर आ गया है, अब खुदा भी तहम्मल करता है। खुदा को हम देखते हैं, खुदा 120 साल तक तहम्मल करके बैठा रहा जब नूह कश्ती तैयार कर रहा था। खुदा आज भी शायद तहम्मल करके बैठा हुआ है कि ये लोग सुधर जाएंगे। खुदा चाहता है कि ये लोग सुधर जाएं। पढ़े जरा। जो तुम्हारी तहकीर करे उनके लिए जो तुम्हारी तहकीर करे उनके लिए दुआ करो, उनके लिए भी क्या करो, दुआ करो। जो तुम्हें बेइज्जत करे, ये बेइज्जती है हमारी कौम की बेटियों को रात को खेतों में सोना पड़ा, वो कैसे सोई होंगी। हम उस दिन जब वहां पे थे, मैं रात को बात कर रहा था, पास्टर जमील आए थे, तो मैं उनसे बात कर रहा, भाई साहब मैं कहा जिंदगी में मुझे कभी दाने नहीं निकले, पित्त के दाने होते ना, मुझे नहीं कभी निकले, लेकिन कल में मेरी ये हालत थी कि मुझे कभी कहीं पे ऐसे लग रहा जैसे कोई सुइए मार रहा है। उन लोग का क्या हाल होगा जो खेतों में सोए थे, जो वहां पे लेटे रात जिन्होंने गुजारी, और वो खेत भी ज्वार लगा हुआ है, कमाद लगा हुआ है, और उसकी अपनी बहुत ज्यादा हीट होती है। हम अपने आप को देखते हैं, लेकिन उनको देखें तो उनका दुख इंतहाई बड़ा दुख है। उन्होंने हमारी क्या की है, बेइज्जती की है, तहकीर की है। हमारी बेटियों को मजबूरन खेतों में जाके सोना पड़े, और ये कोई नहीं चाहेगा कि मेरी बेटी, हम ये नहीं चाहेंगे कि मेरी बेटी बाहर सो जाए, कभी नहीं चाहेंगे हम। लेकिन हमारी वो बेटियां, हमारे वो बच्चे, हमारे वो बुजुर्ग रात को खेतों में जाके सोए, हम उनके लिए क्या करते हैं, दुआ करते हैं। उन लोगों के लिए जिन्होंने ये इतना सारा बड़ा काम किया है कि खुदा उनके ज़हनों को चेंज करे। खुदा तहम्मल करके बैठता है, और शायद आज भी खुदा तहम्मल करके बैठा हुआ है। हाँ जी पढ़े जरा। गाल पर तमाचा, जो ये है हमारे मसीह की तलीम,
یہ ہے مسیحت کی تعلیم کہ جو تیرے ایک گال پر تماچا مارتا دوسرا بھی اس کی طرف پھیر دے. یہ ہم سکھاتے ہیں اپنے لوگوں کو. ہم یہ نہیں سکھاتے جلا دو, گرا دو, مار دو, لوٹ لو. ہم ایسی تعلیم نہیں دیتے. نہ ہمارا مذہب یہ اجازت دیتا ہے, نہ بائبل مقدس ہمیں اجازت دیتی ہے کہ ہم ایسی تعلیم آگے بڑھائیں. بلکہ ہماری تعلیم ہم دیکھ رہے ہیں, لکھا ہے کہ جو تیری ایک گال پر تماچا مارتا دوسرا بھی اسی طرف پھیر دو. ہم تو ایسے لوگ ہیں, ہماری تعلیم تو یہ ہے. لیکن آپ کی تعلیم کا مجھے نہیں پتا کہ کیا تعلیم ہے, کیا آپ سکھا رہے ہیں, کیا سکھایا جا رہا ہے. لوٹ مار کرو, لوگوں کے گھروں کو جلا دو, ان کی بیٹیوں کو بے حرمت کرو. کیا ہم یہ سکھا رہے ہیں اپنے بچوں کو؟ ہم اپنے بچوں کو جو سکھا رہے ہیں ہمیں خوب پتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کیا سکھا رہے ہیں. جی آگے پڑھے ذرا. اور جو میرا چوگا لے اس کو کرتا لینے سے بھی منع نہ کرو. جو تیرا چوگا لے, میں سمجھتا ہوں کپڑے نہیں لے کے گئے, کپڑے ادھر کے ادھر ہی پڑے ہیں. کئی لوگوں کے گھروں میں آگ بھی لگی, کپڑے ادھر کے ادھر ہی پڑے ہیں, ان کو نہیں لے کے گئے. اس کو روکا تھا کسی نے کہ کپڑے نہ ساڑے جانا. افسوس کی بات ہے کہ جو چیزیں اچھی تھی وہ تو وہ لے گئے ہیں, اور جو چیزیں ویسے کباڑ کباڑ ہے وہ ایک ایلڈر کے گھر میں ہم گئے. ایلڈر صاحب کا گھر جو ہے مکمل طور پہ ختم ہو گیا. چرچ کی بیک سائڈ پہ وہ گھر تھا. دوسرا وزٹ ہمارا اسی کے گھر میں تھا. اور میں نے پوچھا یہ گھر کس کا کرتے؟ جی ایلڈر صاحب. میں کدھر ہیں؟ ایلڈر صاحب آئے, میں نے اپنا تعارف کروایا, پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ میں ایلڈر ہوں. انہوں نے کہا پاش صاحب یہ صرف اور صرف لوٹ مار کی گئی ہے, کوئی ایسا واقعہ ہی نہیں ہوا, کچھ ہوا ہی نہیں ہے. اور ہمیں کہا گیا آپ گھروں سے نکل جاؤ. ہمیں گھروں سے نکال کے ہمارے گھروں سے سارا کچھ کھین اٹھا کے لے گئے, اور جو باقی چیزیں بیکار تھی ان کو آگ لگا کے ظاہر کیا گیا کہ ہم نے تو جلا دیا سارا کچھ. جلایا نہیں, لوٹا گیا ہے. چور ہیں آپ بہت بڑے, آپ نے چوری کی ہے, اور چور کبھی نہیں مانتا. آپ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ پاسٹر صاحبان تعلیم نہیں ٹھیک دیتے, آپ لوگ تعلیم ٹھیک نہیں دے رہے. اگر آپ تعلیم ٹھیک دیتے ہوتے تو آج ایسے ثانیہ نہ ہو. ایک اور حوالہ دیکھیں ذرا. رومیو کا خط 5 باب اس کی 3 سے 5 آیت تک پڑھیں گے. اب ہمارے لیے ہے یہ, ہماری تعلیم کیا ہے. 5 باب اس کی 3 ہے, 3 اور 5. اور صرف یہی نہیں بلکہ مصیبتوں میں بھی فخر کریں. میں سمجھتا ہوں لوگ مصیبت میں بھی فخر کر رہے ہیں اپنے آپ کو. وہ کہتے ہیں ہاں میں مسیحی ہوں, چاہے مار دو, ہم مسیحیت سے پھرنے والے نہیں ہیں. پڑھ دے ذرا. اور صرف یہی نہیں بلکہ مصیبتوں میں بھی فخر کریں, یہ جان کر کے مصیبت سے صبر پیدا ہوتا ہے. مصیبت سے کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں ان لوگوں نے صبر Yes, hallelujah. Hallelujah. Yes, hallelujah. جی پڑھیں آپ. اور صرف یہی نہیں بلکہ مصیبتوں میں بھی فخر کریں. مصیبتوں میں بھی فخر کریں. جی یہ جان کر کے مصیبت سے صبر پیدا ہوتا ہے. مصیبت سے صبر پیدا ہوتا ہے, اور صبر سے پختگی. اور پختگی. صبر سے جب ہم صبر کرتے ہیں تو پختہ ایمان میں پختہ ہو جاتے ہیں. یہ ہمارا صبر ہے.
उन बच्चों का, उन बेटियों का, उन नौजवान बच्चों का, उन बहनों का, उन बुजुर्गों का जो वहां पे रहते हैं, ये उनका सब्र है और वो उनका ईमान है। तो अब भी वो मसीहत में कायम है, वो अब तक कायम है। पढ़ेंगे आगे। और पुख्तगी से उम्मीद पैदा होती और है। पुख्तगी से उम्मीद पैदा होती है। अभी भी उम्मीद है उनको। उम्मीद क्या है? वो कहते हैं कि भाई साहब हम बहाल हो जाएंगे, घर बन जाएंगे, सामान आ जाएगा, हर चीज आ जाएगी, लेकिन हमारा खौफ नहीं निकलना। बच्चों के अंदर से खौफ कैसे निकलेगा? अफसोस की बात है। पुख्तगी बहुत है, ईमान की मजबूती बहुत है, लेकिन बच्चों के अंदर से ये खौफ कैसे निकाला जाएगा? हम यहाँ पे बैठे हैं, हमें कोई इतना पता नहीं चल रहा, लेकिन जो लोग वहाँ पे जाके देखे, क्या लोग गलियों में ऐसे बैठे हैं, ऐसे मातम बुजुर्ग बैठे, बेटियां बैठी, बच्चे बैठे, गलियां भरी पड़ी, और वो सिर्फ इंतजार कर रहे कोई आए और आके हमसे बातचीत करे, बोल दो तसल्ली की, बोल दो। वो सिर्फ इंतजार करते हैं। जब भी कोई वहां पे इंटर होता है तो फौरन खड़े हो जाते हैं, पाँच साहब मेरे खाते, पाँच साहब मेरे खाते, मेरे घर आ जाए, मैं आपको अपना खाना खाता। ये वहां की दास्तान है और तलीम का हमें कहा जा रहा है। पढ़े जागे 5 आता पर उम्मीद से शर्मिंदगी हासिल नहीं होती। उम्मीद से शर्मिंदगी हासिल, हमने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे हमें शर्मिंदगी हो। शर्मिंदगी आप लोगों को होनी चाहिए जिन्होंने ये सारा कुछ किया है। हमने क्या किया? हम क्यों शर्मिंदगी अपने ऊपर ले? हमें कोई शर्मिंदगी नहीं है। हमें अपने खुदा पे फख्र है, और हमें फख्र है हमारी बाइबल मुकद्दस पर, फख्र हमें कुरान पर, जिस पर खुदा यीशु मसीह ने सलीब पर जान दी। हमें इन सारी चीजों पर फख्र है। हम शर्मिंदगी क्यों महसूस करें? हमारी तलीम में कोई ऐसी बात नहीं है जिससे हमारे बच्चे जो हैं वो कोई गलत काम करें। जी पढ़ दें आगे। क्योंकि रूह कुद्दस जो हमको बख्शा गया है, उसके वसीला से खुदा की मोहब्बत हमारे दिलों में डाली गई है। उसके वसीला से खुदा की मोहब्बत हमारे दिलों में डाली गई है, और जिसके अंदर मोहब्बत भरी है वो कैसे किसी से नफरत कर सकता है? किसी मजहब से, किसी से भी कैसे वो नफरत कर सकता है? क्योंकि उसकी मोहब्बत हमसे बसी हुई है। इसलिए जरूरत है कि हम पहले अपने आप को देखें, फिर किसी के ऊपर उंगली उठाएं। ज़बूर 34 और इसकी 16 आयत को पढ़े जरा। खुदावंद का चेहरा बदकारों के खिलाफ है। खुदावंद का चेहरा बदकारों के खिलाफ है, ताकि उनकी याद जमीन पर से मिटा दे। ताकि उनकी याद जमीन से मिटा दी जाए। खुदावंद करेगा ये, मेरा ईमान है कि जिन लोगों ने ये काम किया है उनकी याद जमीन से खुदा मिटा देगा। ये हमारा ईमान है कि हम के खुदा के लोग हैं। खुदा, अक्सर लोग कहते हैं ना, हम भी मिसाल देते हैं कि सब्र करोगे तो सब्र तेरा जाएगा। ये वाक्य ऐसा वाक्य है, एक मिसाल देता हूँ। हम अक्सर वो मिसाल देते हैं, किसी ने किसी को कहा कुत्ता तेरा कान ले गया, उसने अपने कान को नहीं देखा, कुत्ते दे मगर दौड़ा। ये वाक्य भी ऐसा ही हुआ, ऐलान कर दिया गया और लोगों ने कोई तहकीकात नहीं की, और वहां के लोग बता रहे हैं, वहां के लोग अभी भी वहां पे मौजूद है, वो जो मुस्लिम लोग हैं, गैर मसीही लोग हैं, वो कहते हैं कि हम इनके साथ खड़े थे, हम इनको बचा रहे थे, वो हमारे इलाके के लोग ही नहीं थे। ये पूरी प्लानिंग थी। ये लोग भी बाहर से आए थे, उस इलाके के लोग नहीं थे जिन्होंने आके ये काम किया। लेकिन पहले अपना कान नहीं देखा, कान लगा तो कुत्ता बाकी रह गया। ऐसे हम लोग हैं, हम सिर्फ और सिर्फ ये देखते हैं कि किसी ने ऐलान कर दिया है और हमने उस पर काम करना शुरू कर दिया, और ये नहीं पता कि उस बंदे ने 5 लाख रुपया देना था जिससे उसने ये सारी प्लानिंग तैयार की। 5 लाख रुपया ना देने के लिए
اس نے اتنی بڑی پلاننگ کی اور اتنے لوگوں کو بے گھر کر دیا, اتنے چرچز کو جلا دیا گیا, اتنی کلاسوں کی بے حرمتی کی, قبروں کی بے حرمتی کی, تو کیا خدا خوش رہے گا؟ میرا اور آپ کا خدا ضرور انصاف کرے گا, اور یہ چند دنوں کی بات ہے, دیکھیں کیا ہوتا ہے. خدا ضرور انصاف کرنے والا ہے. پڑھ دے ذرا اس کو, 5 تک جانا ہے. زبور کی زبور 3 باب 34 باب اس کی 16 ایسے پڑھنا شروع کرتے ہیں. صادق چلائے اور خداوند نے سنا اور ان کو ان کے سب دکھوں سے چھڑایا. سب دکھوں سے کیا کیا؟ ان کو چھڑایا. خدا دکھوں سے کیا ہے؟ چھڑانے والا. وہ دکھوں میں ضرور ہے, لیکن جتنے لوگ وہاں پہ پہنچ چکے ان کے دکھ میں ان کے ساتھ شریک ہو گئے ہیں, اب میرا خیال ہے کہ ان کا دکھ بانٹا جا رہا ہے. وہ دیکھ رہے ہر چیز جو ان کی ضرورت ہے ان کو ان کے مطابق ان کو پہنچائی جا رہی ہے. فون آ رہے ہیں, بھائی صاحب یہ چیز چاہیے, بھائی صاحب اب یہ زیادہ ہو گئی ہے, اب یہ چیز بھیجیے یہاں سے. اور میں پاسٹر کو فون کرتا ہوں کہ آپ جو بھی جا رہے ہیں یہ چیز لے کے جائیں, وہاں پہ اس چیز کی ضرورت ہے. ابھی آج ہی مجھے وہاں سے فون آیا کہ بھائی صاحب باقی ساری چیزیں آپ وافر مقدار میں ہیں, صرف بچوں کے اسکول کھل گئے ہیں, یونیفارم اور جوتی اور بیگ چاہیے. تو میں نے کہا ضرور ہم ریکویسٹ رکھیں گے. لوگوں کو ہم نے کہا ہے پاسٹر صاحبان کو کہ آپ لوگ اب جو جا رہے ہیں کھانے کا سامان نہ لے کے جائیں, کیونکہ کھانا وہاں پہ گورنمنٹ بھی دے دی ہے, بہت سارے لوگ دے رہے ہیں. آپ وہاں پہ اسکول بیگ کاپی ایسی چیزیں لے کے وہاں پہ پہنچے. میں شکر گزار ہوں تمام لوگوں کا, تمام پاسٹر صاحبان کا جو اس وقت وہاں پہ سارا کام کر رہے ہیں. خدا ان سب کو برکت دے. اور لاسٹ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ لوگ ان کے لیے دعا ضرور کریں کہ وہ اتنے دکھی ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں اپنے کام کاج کر رہے ہیں, لیکن وہ لوگ ابھی تک گلیوں میں بیٹھے ہیں, کوئی کام کاج نہیں, کچھ نہیں, صرف اور صرف وہ اپنے گھروں کو دیکھ رہے ہیں. آئیں خدا اسلام کے اس طرح سے ہم سب کو برکت دیں. آئیں اپنے سر دعا کریں, اشفاق کے ساتھ اس کو دعا کریں.